we are doing this session in partnership with Premier Energies. Premier Energies is India's second largest integrated solar cell and solar module manufacturing company. In fact, as of March 31st, 2024, the company boasts an annual production capacity of 2 gigawatt for solar cells and 3.36 gigawatt for solar modules. In fact, 12 of their modules were recognized as top performers in the 2023 Module Reliability Scorecard released by PVEL. PVEL is an annual assessment of solar modules from manufacturers globally. And without any further ado, I want to introduce on the panel both our esteemed speakers, Nikhil Nahar and Chiranjeev Saluja. Nikhil comes with over decade experience in clean energy sector. He is a double gold medalist, a Japanese scholar with masters from Japan, and the co-founder and director of Solar Square. Joining Nikhil on the panel is MD of Premier Energies, Chiranjeev Saluja. He is India's 100 most influential solar business leaders and one of the directors of the All India Solar Industry Association. Nikhil and Chiranjeev ji, thank you for doing this with us and welcome to the panel. Nikhil, over to you. Thank you. Thank you, Nikhil. Thank you so much. Nikhil, one of the biggest questions that every family has when they go do the solar investment and start their solar journey is how to choose the Sahi solar panel for their home. Right. So typically solar equal to solar panel. This is the misconceptions that most of the people have, but that's not it. Solar actually is an integrated system. एक project है जो आपके छत पे लग रहा है. Although solar panel is very important part of the solar system and it contributes to the most of the cost of your solar system. तो आपको उसका सिलेक्शन सही ढंग से करना जरूरी है. तो आज हम यही सारे पॉइंटर्स जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस है, उसको हम क्लियर करना चाहेंगे. एक सोलर सिस्टम कैसे काम करती है, उसके सिलेक्शन पैरामीटर सोलर पैनल के क्या होने चाहिए, हम एक सोलर पैनल का एक कंस्ट्रक्शन भी कैसे होता है वो एक देखेंगे, और आज तक जो सर्वेज हुए हैं उसमें सोलर पैनल्स में किस तरीके के फेल्यूर्स आए हैं उसका भी एक हम ओवरव्यू लेंगे. व्हाट आर द रिस्क्स एंड द मिटिगेशंस फॉर आवर कस्टमर्स, जहाँ पे कस्टमर्स को पता ही नहीं होता है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है. वी वांट टू एक्चुअली ओपन दैट कर्टन टुडे एंड our customers can actually understand how does the module reach their home and how Solar Square and our partners, we are investing in ensuring that we protect your investment. And in the end, it's going to be the best part of the webinar where we are going to present our customers with a zero investment plan. So please tune on to the last slide. Before we proceed, I mean, for me, it's been a few months in the solar industry, and for you and Chiranjeev ji, you guys have spent so many decades. What is the myths that you keep hearing about solar? But before you answer that, I have a question for our audience. Audience, you can please use the chat box. The question is, solar panels perform the best in the hottest Indian cities. आपको क्या लगता है ये statement सही है या गलत? Please use the chat box to write either true, false. If you think the statement is true, give me a thumbs up. Okay, a lot of you think that solar panels perform the best in India's hottest cities. I have another question before we take insights from our speakers. You can't run your high load equipment with an on-grid solar system. Is that statement you think it's right? कि आपका solar जो on-grid solar system है, that will not support your high load equipment. Yes, no, what do you think? All right. Nikhil, a lot of people think that solar runs best in India's hottest city. Do you want to break that myth for them? Perfectly fine. I think most of the people have the misconceptions. I should say कि solar hottest Indian cities में सबसे ज़्यादा अच्छा perform करता है, but वो एक misconception है. Indeed, temperature is not good for modules. Solar panels के लिए temperature यानी it is like diabetes के लिए sugar, right? Actually आपका panel का performance degrade होता है जैसे temperature बढ़ता है. So अगर fun fact बताऊं,
तो इंडिया में लेह लद्दाख इज द बेस्ट प्लेस टू पुट सोलर। आपको सोलर से जो आउटपुट आएगा दैट विल बी द बेस्ट आउटपुट। एक तो एक कोल्डेस्ट प्लेस है, वहां पे रेडिएशन की लेवल बहुत हाई है, एंड उससे भी ऊपर पोल्यूशन फ्री है। सो आपके सोलर पैनल तक जो भी सनलाइट्स आती है, it gets converted very easily. So the misconception of temperature is important. I should say radiation, that is sunlight is important, not the temperature. दोनों अलग चीजें हैं। एंड जो सेकंड मिथ है कि मेरे घर के सारे इक्विपमेंट एक ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ में चलेंगे या नहीं चलेंगे, बहुत सारे लोगों ने इस स्टेटमेंट को ट्रू बोला था। एक्चुअली ये स्टेटमेंट भी गलत है। ऑन ग्रिड सिस्टम में आपके घर के सारे इक्विपमेंट आसानी से रन हो सकते हैं। आपके घर में जो सिस्टम सोलर की लगेगी वो आपके ग्रिड के, डिस्कॉम के ग्रिड के साथ में सिंक्रोनस होकर आपके घर के इक्विपमेंट को ड्राइव करती है। तो आपको पता नहीं चलता कि सोलर की एनर्जी और ग्रिड की एनर्जी एक साथ मिलकर आपको पावर दे रही है। सो ये एक मिसकंसेप्शन है दैट मेरे घर के सारे इक्विपमेंट नहीं चल सकते। इवन हाई लोड इक्विपमेंट सच एज एयर कंडीशनर्स, आपके मोटर्स, ये सोलर सिस्टम के साथ में ड्राइव हो सकते हैं। एक और छोटा सा मिसकंसेप्शन ये भी है कि यार रेनी सीजन में क्या होगा, विल माई सिस्टम जनरेट। तो आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एज पर इंडिया स्टेटिस्टिक्स रफली 50% ऑफ योर सिस्टम विल स्टिल जनरेट। हालांकि बारिश होती है तब थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हो जाता है, बट हमारे यहाँ पूरे के पूरे सनी डेज या पूरे के पूरे रेनी डेज नहीं होते। इट्स अ मिक्स ऑफ द टू, एंड इसीलिए ऑलमोस्ट आपको 50% तक पावर 100% सोलर पैनल से मिलती है ड्यूरिंग इवन रेनी सीजन्स। So these were the two myths which I wanted to break down today, and these misconceptions for at least this audience will not be there going forward. Thank you so much, Nikhil. Chiranjeev ji, I wanted to ask you. You come with so many years and decades of experience in the solar, and you have spoken with so many customers in your journey. What are the constant kind of myths that you have heard in your journey when you've interacted with customers? Yeah, so thank you, Sneha, and good afternoon, everybody. Apologies for the background noise because I'm at a conference here and I've just stepped out. So I'm audible, right? Yes. Right. Yeah. So the myths were typically these two, which आपने भी जो भी दिखाए हैं, and as what निखिल ने बोला है कि भाई solar panel को we don't need heat, we need the right temperature and the right sunlight. So it is a myth that it performs very good in hot climates. It doesn't actually. तो that is one of the myths जो हमने भी देखा है। एंड कई लोग हमको यही क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई क्या आपके पैनल से रात को भी जनरेशन होगी, क्या हम पैनल से अपना एसी चला सकते हैं। तो एक ऑन ग्रिड सिस्टम में दैट कॉन्सेप्ट डजंट वर्क। वहाँ पे आप अपने सोलर पैनल से और अपनी सिस्टम से पावर को फीड कर रहे हो इनटू द ग्रिड, एंड बहुत सीमलेसली आपको पता भी नहीं चलता कि आप सोलर का पावर यूज़ कर रहे हो या आपको इनकमिंग पावर ग्रिड से आ रहा है। बट एट द एंड ऑफ द मंथ आपकी नेट मीटरिंग में आपको जो उसका मुनाफा मिलता है दैट इज अनबिलीवेबल। तो आज के दिन मैं तो बोलता हूँ कि जो भी अपने घर पे सोलर नहीं लगा रहा है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज कर रहा है, क्योंकि इस टाइप का रिटर्न आज तक कभी भी नहीं मिला सोलर पे। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में 1995 से हूँ, 29 साल हो गए हैं सोलर पैनल बेचते हुए। एंड सोलर पैनल के प्राइसेस जो आज हैं और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम हो रहा है और जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, it is a great opportunity for everybody. Thank you so much, Chiranjeev ji. Moving on, another basic question: how does a solar system work? Nikhil, over to you. Right. So सोलर सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक प्रोजेक्ट है जो आपके घर पे लग रहा है। सो आपके सोलर सिस्टम में पैनल्स है, इन्वर्टर्स है, जिसके ऊपर पैनल्स का माउंटिंग होता है, वो स्ट्रक्चर्स है। उसके बाद में स्विचेस आते हैं, मीटर्स आते हैं, ये सबको इंटरकनेक्ट करने वाले आई थिंक lots of cables, conduits are there. So how I typically term is that solar panels are heart of your system, inverter is brain of your system. So heart का काम ये है कि सनलाइट की जो एनर्जी है उसे डीसी पावर में कन्वर्ट करे, और ब्रेन यानी इन्वर्टर का काम ये है जो डीसी की पावर सोलर पैनल से उसको मिल रही है उसे हम एसी में कन्वर्ट करें। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, जो आपके घर पे जो करंट आता है 415 वोल्ट या 230 वोल्ट की जो पावर आपके घर में आती है, that is exactly the output inverter will give you. And fun fact है, बट स्ट्रक्चर्स को मैं यूजुअली हैंड्स एंड लेग्स ऑफ द सिस्टम बोलता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर पूरी की पूरी मैकेनिकल इंटीग्रिटी सिस्टम की डिपेंडेंट है। अगर वो मजबूत नहीं है
तो सोलर पैनल मजबूत नहीं है तो सोलर पैनल टिकेंगे कैसे, राइट? दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम्स इवन इन द डिस्कशन ऑफ व्हेन सोलर सिस्टम is getting discussed. It's not only the panel, but it's the integrated system. Correct. Thank you, Nikhil. Thank you so much. In fact, I just want to quickly say that this webinar today, audience, आज हम heart of the system के बारे में बात करेंगे, solar panels के बारे में. But if you stay tuned to our page and to our communication, you will see that हम बहुत ही जल्दी next webinar करेंगे. जो brain of the system inverter के बारे में हम बात करेंगे और structure कैसा होना चाहिए. We will be doing next webinars on these two topics. Moving on, I again have a question for the audience. Audience, what is the main component that is used to convert sunlight into electricity in solar module? Is it silicon, aluminum, copper, or gold? Please use the chat box to answer this question. Nikhil, would you help our audience? I think they would. The answer is silicon. It's a semiconductor device और इसका use solar cells के अंदर होता है and इसका ही main purpose है that it will convert the sunlight into the DC power. Correct. Thank you so much, Nikhil. Moving on to the next question. This is ये सबसे critical question है actually आप सबके journey में, that when you are selecting the सही solar panel, क्या factors आपको consider करना चाहिए? Factors that will protect your investment, make your journey more valuable, and of course get you the highest returns on investment. Nikhil, over to you. So सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पावर आउटपुट कितना है सिस्टम से और आपके पैनल की एफिशिएंसी कितनी है. अगर आपके पास में एरिया कम है रूफटॉप पे या फिर शैडो प्रोन एरियाज है तो हमें ऐसा पैनल यूज करना चाहिए जिसमें आपको सबसे ज्यादा एफिशिएंसी मिल रही है. एरिया एफिशिएंसी हम बेटर कर सकते हैं. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आपको सेम एरिया में कौन सा पैनल मैक्सिमम पावर दे सकता है. दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आप जो पैनल खरीद रहे हैं वो रिलायबल कितना है, ड्यूरेबल कितना है. क्योंकि ये पैनल हार्श टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस को एक्सपोज होगा. तो अगर इसकी कंस्ट्रक्शन के वक्त में इसके जो टेस्टिंग की जाती है उसके वक्त में ये पैनल्स अगर सही से डिजाइन नहीं किया गया है तो आपको दिक्कत हो सकती है. इसमें वारंटीज और गारंटीज क्या है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड. इसके अलावा एक हमेशा ट्रेड ऑफ होता है कॉस्ट, क्वालिटी, टाइम. ये तीनों का एक ट्रेड ऑफ हमेशा बात किया जाता है. तो क्वालिटी comes at a cost and if you are only going to see that okay मेरा cost lower आ रहा है तो I should take certain panel and I can save something, in the long run आपको नुकसान पहुंचा सकता है. So we will talk about this in the later part of the webinar also. And last but not the least, क्योंकि ये आपके घर के छत पे लग रहा है, आपके रूफटॉप पे लग रहा है, तो एस्थेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये आपके घर पे कैसे सुंदर दिख सकता है वो मैटर करेगा. So these are some of the important factors that we consider while selecting the module. Great, thank you, Nikhil. Chiranjeev ji, over to you. What are the factors would you sort of point as your top 3 while selecting a solar module, especially if I have to take your opinion on the durability bit? Sure. So solar panel is the most expensive component in your system. तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो बायर है, जो होम ओनर्स हैं, उनके लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ वर्किंग विद और हैविंग ऑप्शंस ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेटर्स इन द मार्केट. वी एज प्रीमियर वी लव टू वर्क विद सोलर स्क्वायर बिकॉज हम देखते हैं कि एज अ पार्टनर सोलर स्क्वायर इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज जो ना कि खाली सिस्टम लगाता है बट उसको 5 साल मेंटेन भी करता है और लोन भी अरेंज करता है. मतलब 360 डिग्री रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. सबसे ज़्यादा हमने देखा है हमारे 29 साल के तजुर्बे में कि पैनल में प्रॉब्लम अगर आती है इट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ बैड इंस्टॉलेशन और एन इंटीग्रेटर जो काम ठीक से करके नहीं गया या करेक्ट
बिल ऑफ मटेरियल नहीं यूज़ किया उन्होंने। एंड कमिंग टू पैनल, क्योंकि पैनल की वारंटी जो है ये कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट आपको 25 साल और 30 साल की वारंटी नहीं मिलती। पैनल में दो किस्म की वारंटी है, एक है मैन्युफैक्चरिंग वारंटी जो 10 साल से 12 साल मिलती है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, और एक है आउटपुट वारंटी जहाँ पे मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर बोलता है कि अगर मैंने आपको 540 वाट का मॉड्यूल दिया तो वो 25 साल में भी कम से कम 80% पावर उसका जनरेट करेगा। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस इज रियली इम्पोर्टेंट पैनल मैन्युफैक्चरिंग में। यहाँ पे ऑटोमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हो सकता है कि आपको सोलर पैनल सस्ता मिले, बट क्या वो एक फुल्ली ऑटोमेटेड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग लाइन से आ रहा है? क्योंकि सोलर सेल जो होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू इम्प्यूरिटीज, टू मॉइस्चर। तो जब ये पैनल बनता है, अगर ये कोई क्लीन रूम एनवायरनमेंट में नहीं बनता या उसमें कोई इम्प्यूरिटी चले जाती है, तो वो पैनल, सबसे बड़ी दिक्कत है कि पैनल लगने के 2 से 4 से 5 साल के बाद उसकी प्रॉब्लम नजर आती हैं। तो जब कोई बायर खरीदता है उसको लगता है कि पहले साल तो मेरा पैनल परफेक्ट चल रहा है, लेकिन जब वो देखता है 3 साल 4 साल 5 साल के बाद कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक्सपोजर के बाद जो उसमें अगर हाई क्वालिटी का आपने इनकैप्सुलेंट यूज नहीं किया या आपने पैनल को सस्ता बनाने के लिए जो उसके अंदर मटेरियल्स हैं जो ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज किया, तो इन चीज़ों की प्रॉब्लम। आज आप अगर शोरूम से आप जाके टीवी खरीदते हो, आपने घर पे टीवी ऑन करी, आपको मालूम पड़ जाएगा कि टीवी कैसी है, उसका कलर कैसे है, उसका विजुअलाइजेशन कैसे है, बट सोलर पैनल में लगाते ही नहीं मालूम पड़ता है। मालूम पड़ता है 2 साल 4 साल 5 साल के बाद। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जब आप एक पैनल खरीद रहे हो जिसकी 25 साल की वारंटी है, तो आप उन कंपनी से पैनल खरीदो जो इनके पास ऑटोमेटेड लाइन हो, जिनके पास सर्टिफिकेशन हो। सर्टिफिकेशन भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कि आपने अपने बेस्ट सैंपल बना दिए, लेबोरेटरी को भेज दिए अपने गोल्डन सैंपल और सर्टिफिकेशन करा लिया। बट देर आर अदर सर्टिफिकेशंस जैसे जो प्रीमियर के पास है और दूसरे ब्रांड्स के पास भी है इंडिया में, कि जिसको हम बोलते हैं कि एक्सटेंडेड रिलायबिलिटी टेस्ट, कि अगर पैनल्स में आईईसी सर्टिफिकेशन कराना है तो एक्सटेंडेड रिलायबिलिटी में 3 टाइम्स आईईसी, मतलब स्टैंडर्ड से 3 गुना पैनल को हम सब्जेक्ट करते हैं टू आउटसाइड कंडीशंस। एंड जो आपने बताया था हमारे इंट्रोडक्शन में पीवेल का सर्टिफिकेशन, पीवेल जो है इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस लैब कॉल्ड द पीवी एवोल्यूशन लैब। ये टेस्टिंग कैलिफोर्निया यूएस में होती है। पूरे वर्ल्ड में 400 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 400 से 450 लोग, और खाली 35 कंपनीज हैं जो टॉप परफॉर्मर में आए हैं, जिसमें से एक हमारी कंपनी है। तो क्वालिटी जो फील्ड में टेस्टिंग की गई, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड जो निखिल ने बोला एफिशिएंसी इज इंपॉर्टेंट, कि आप अपने रूफ पे जितना ज़्यादा लगा सको, तो जितना एफिशिएंट ज़्यादा रहेगा उतना आपका रूफ पे एरिया के हिसाब से आप ज़्यादा कैपेसिटी लगा सकते हो। सो कॉस्ट इज नॉट एवरीथिंग। आपको, क्योंकि ये सबसे महंगा प्रोडक्ट है आपके सिस्टम में, यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव कि आप उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो बिफोर यू फाइनलाइज द पैनल, एंड टॉक टू योर इंटीग्रेटर कि आप मुझे ये पैनल क्यों सजेस्ट कर रहे हो, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, और सस्ता वाला पैनल क्यों नहीं सजेस्ट कर रहे हो। knowledge sharing is really important here. Absolutely, absolutely, Saluja ji, and thank you for your insight. Thank you, Nikhil, for your insight. In fact, both of you said a very important thing, that it is such an expensive investment. In fact, it's a 25-year of investment. So make the sahi choice, go for the sahi solar panel, because and collectively in Indian household, especially, it's a family's decision. So selecting the sahi solar module is absolutely essential. Moving on to the webinar, Nikhil, what are other factors would you consider when choosing the Sahi Solar module? So important aspect यही है, जैसे shadow है, shadow is not good for modules. It can create hotspots, मतलब उसकी वजह से आपके मॉड्यूल के ऊपर hotspots आ सकते हैं अगर इसका डिजाइन हमने सही से नहीं किया है। तो आपके छत पे मम्टीज है, आपके छत पे एंटीनाज है, आपके छत पे बाकी बिल्डिंग्स आजू बाजू की है, उसकी शैडोज मॉड्यूल्स पे आ सकती है, एंड दैट कैन एक्चुअली डैमेज द मॉड्यूल्स इन द लॉन्ग रन। तो एक शैडो की एक विंडो रहती है, टिपिकली वी टेक दैट एज 9:30 और 3:30 PM। एक एक्सेप्शनल केसेस में हम 10 PM to 3 PM की भी विंडो कंसिडर करते हैं, बट अदरवाइज वी शुड स्टिक टू दैट विंडो विच इज अ थंब रूल विंडो, कि इस विंडो में आपके छत पे जो मॉड्यूल्स लगे हैं उस पे शैडोज नहीं आ रही है। हार्ड शैडोज यानी डायरेक्टली शैडो विच इज गेटिंग कास्ट ऑन योर मॉड्यूल्स, दैट कैन क्रिएट द हॉटस्पॉट्स एज आई मेंशन्ड। हॉटस्पॉट यानी वो है जहाँ पे पावर प्रोड्यूस करने के बदले वो सेल जो है पावर कंज्यूम करना चालू करता है। वो पावर जब कंज्यूम करता है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट कंज्यूम करता है,
तो वो लोकली एक हॉटस्पॉट जनरेट होता है, गर्म हो जाता है वो सेक्शन, एंड अल्टीमेटली इट कैन लीड टू फेलियर ऑफ द पैनल। अदर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इज दैट आपका छत में ओरिएंटेशन और टिल्ट एंगल पैनल का, ये दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है। ओरिएंटेशन टिपिकली साउथ में रहे तो आपका अच्छा आउटपुट आता है। टिल्ट एंगल इंडियन कंडीशंस में 5-7 डिग्री से लेके 15-20 डिग्रीज तक है। सोलर स्क्वायर स्टैंडर्डाइज्ड द टिल्ट एंगल एज 10 degrees across India, so that our structures are actually standard. So that gives an assurance that everything is made in the factory and it directly reaches your home without any interventions. So very, very important factors to design and consider while you are putting the solar on your rooftop. Great. Thank you, Nikhil. Nikhil, in your experience, you have seen other vendors do it as well. How many industry players are actually sort of doing this analysis of these roof space shadow analysis, in your opinion? Handful, I would say. I believe that the most of the installers, most of the local installers, or even the players who have like 1 or 2 years of experience, they would not invest in actually doing these analysis. So you would typically have a welded structure getting installed on your rooftop, and welded structures में जिस दिन solar panel लगाना है उस दिन sections को काटा जाएगा, अच्छा यहाँ नहीं वहाँ, तो ऐसे करके आई थिंक द प्लेस इज चोजन, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट राइट। हमें असली सिमुलेशन करना चाहिए कि आपके रूफ पे जो शैडो जोन है वो कंप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। Great, thank you, Nikhil. Moving on to what to look for in a Sahi solar panel, continuing the conversation. Nikhil, let's talk about the technology evolution that has happened. We have TOPCon, MPERC, and Poly. इनका मतलब क्या है, अगर आप एकदम आसान भाषा में हमारे ऑडियंस को समझा पाओ, एंड यू नो व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट दे शुड लुक फॉर? आप अगर देखेंगे, सबसे पहले जब मॉड्यूल आया वो पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म में आया था, उसके बाद में वो इवॉल्व होके मोनोक्रिस्टलाइन फॉर्म में आया। तो मोनोक्रिस्टलाइन में ये जो सिलिकॉन सेल्स की बात करते हैं उसमें जो सिलिकॉन यूज होता है वो प्योर फॉर्म में आ गया। पॉलीक्रिस्टलाइन में स्टिल इट वाज स्लाइटली इम्प्योर, तो उसकी वजह से आप अगर देखेंगे यहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो पॉली की काफी कम हुआ करती थी, 17% में किया हुआ करती थी। बट वही मोनोपर्क में द एफिशिएंसी हैज गॉन अप ड्रामेटिकली। इसमें मोनोपर्क में हाफ कट भी एक टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, जिसमें पैनल को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा। और नीचे के हिस्सों पे अगर शैडोज भी है तो ऊपर का हिस्सा अच्छे से काम करेगा। So again it is broken down into 2 parts and you are getting the most out of your panel. So monoperk panel है जिसमें अलग डोपिंग होती है compared to the latest technology is the TOPCon. हालांकि आप अगर पहली लाइन देखेंगे मेड इन इंडिया में, आपको आपके घर पे जो पैनल्स लगाने हैं उसके लिए सब्सिडी अवेलेबल होनी चाहिए, राइट? सो DCR डोमेस्टिक कंटेंट आपके पैनल के अंदर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपका वो एलिजिबिलिटी नहीं रहेगा सब्सिडी के लिए। तो आज की डेट में अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो पॉलीक्रिस्टलाइन थोड़ा पुराना मॉडल हो गया, उसमें आपको बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, 1 या 2 ऑप्शंस मिलते हैं। ऑल्दो सब्सिडी अवेलेबल है अगर आप इंडिया में बनाते हो, बट बिकॉज एफिशिएंसी इज आल्सो वेरी लो, सो वो लगाना सेंस नहीं बनाता। द लेटेस्ट वन इज मोनोपर्क हाफ कट, जिसमें आप देखते हो कि आप सब्सिडी भी अवेलेबल है, आपकी एफिशिएंसी भी बेटर है, एक रेंज जो सेम एरिया में आपको 535 से 540 वॉट पीक तक का पावर दे सकती है। इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी बेटर है, जो हमने लेह लद्दाख की बात करी थी। तो जस्ट कोरिलेटिंग इट हियर दैट जैसे टेम्परेचर इवन हॉट सिटीज में भी बढ़ेगा तो ये पावर इसका जो आउटपुट है वो इतना ड्रामेटिकली रिड्यूस नहीं होगा। सो यू कैन सी द डिफरेंस आल्सो हियर। एंड देन देयर आर डिग्रेडेशंस, यानी साल में पहले साल में 2% से 1% का डिग्रेडेशन होता है टॉपकॉन या मोनोपर्क में। विजुअली लाइक बाइफेशियलिटी फैक्टर आजकल हम बहुत बात करते हैं, यानी पैनल जिसका फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरीके से आपको पावर का इजाफा हो सकता है। अब बैक साइड पे कैसे होगा, क्योंकि आपकी अगर सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर अगर पीछे की तरफ से एब्सॉर्ब हो सकती है तो वो एब्सॉर्प्शन भी आपको एक पावर कन्वर्जन में हेल्प करेगा। हालांकि ये बहुत ही कम 1 या 2%, 3% तक का आपको इजाफा होगा डिपेंडिंग ऑन योर साइट सिचुएशन, but then visually also aesthetically it is very very good compared to the conventional polycrystalline panels. प्राइसेस में आप देख सकते हो, पॉली अगर X पे है तो टॉपकॉन X+++ पे ही जाएगा। आज की डेट में देयर आर नो स्टेबल सप्लायर्स आई वुड से इन टॉपकॉन टेक्नोलॉजी।
The technology is also getting matured. Indian circumstances के लिए भी इसको टेस्ट किया जा रहा है. Barring one supplier, we are not seeing, and that too for Indian circumstances, Indian market, उनका supplies इतना stable नहीं है. So my advice to my audience is that today the stable technology is monopuck half cut. We can stick to the central technology. It is proven in the field for years. इसमें जो भी issues थे वो fix हो चुके हैं. एंड टॉपकॉन नई टेक्नोलॉजी है, हालांकि मोर एफिशिएंट है. 555, 560, कुछ जगह पे 575, 80 तक भी चले जाते हैं. बट we are still going to see the stability of TOPCon in Indian circumstances. I believe Saluja ji can comment a bit on when can we expect Premier to come up with a TOPCon. Sure, thank you निखिल. तो आई थिंक निखिल जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है. आज के दिन टॉपकॉन की जो टेक्नोलॉजी है that is just getting popular in China, and India में अभी तक we don't have a lot of penetration in TOPCon technology. बाकी हमने देखा है कि even in roof installations on households, generally we have seen that people are using a backsheet based module. TOPCon का जो मॉड्यूल है वो अभी ऑलरेडी रिसर्च हुआ इंटरनेशनली, और रिसर्च रिपोर्ट बाहर आई है कि अगर टॉपकॉन मॉड्यूल को आप बैकशीट या डबल ग्लास मॉड्यूल से बनाते हो तो ठीक है. अगर बैकशीट यूज कर रहे हो तो उसमें 1.5 से 2 साल में 50% डिग्रेडेशन हो रहा है. तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च रिपोर्ट कमिंग आउट कि टॉपकॉन मॉड्यूल विद बैकशीट इज नॉट एडवाइजेबल. एंड अगर आपको टॉपकॉन मॉड्यूल यूज करना है तो उसको डबल ग्लास मॉड्यूल में ही बनाना है, और डबल ग्लास मॉड्यूल भारी हो जाता है जिससे आपका BOS कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, सिस्टम कॉस्ट बढ़ेगा. तो आज के दिन सबसे स्टेबल टेक्नोलॉजी जो है, आई वुड सजेस्ट कि फॉर अनदर एटलीस्ट 12 to 18 months विल बी मोनोपर्क. मोनोपर्क और टॉपकॉन में खाली एक अपग्रेडेशन है. टॉपकॉन इज नथिंग बट एन अपग्रेड ऑफ मोनोपर्क, जहाँ पे आपका वॉटेज एफिशिएंसी बढ़ने से वॉटेज आपका 540, 545 से 560, 570 में पहुंच जाता है, जिससे आपका 5 से 6% ज़्यादा आप पैनल्स लगा सकते हो रूफ टॉप पे. जनरेशन वाइज देयर इज नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस, एंड मोर स्टेबल टेक्नोलॉजी इज मोनोपर्क टुडे. टॉपकॉन के लिए वी शुड वेट फॉर एटलीस्ट 12 to 18 months कि ये फील्ड में लग जाए और स्टेबिलिटी जो भी करनी है. जैसे अभी लोगों को मालूम पड़ा है कि बैकशीट बेस्ड टॉपकॉन मॉडल इज नॉट गुड, तो अभी लोग सब ग्लास टू ग्लास में मूव कर रहे हैं. तो ये जो अभी काइंड ऑफ आई वुड से R&D चल रहा है, इसमें होम ओनर्स शुड बी अवे टिल द टेक्नोलॉजी स्टेबलाइजेस. Great. Thank you, Chiranjeev ji. Moving on to the next part of our webinar, understanding solar panels construction. Nikhil, over to you again. Right. So एक सोलर पैनल में काफी लेयर्स होते हैं, एंड सबसे पहले तो ऊपर एक फ्रेम होती है जो एल्यूमिनियम की है, लाइट वेट एंड रोबस्ट होनी चाहिए क्योंकि ये टिकनी है लंबी ड्यूरेशन तक. उसके बाद में ग्लास है, ये आपका जैसे मोबाइल का ग्लास होता है, गोरिल्ला ग्लास आपने सबने सुना ही होगा, वैसे टेम्पर्ड ग्लास यूज करते हैं मॉडल के अंदर, सो दैट स्टेबल और रोबस्ट परफॉर्मेंस आए. ट्रांसमिशन अच्छा होना चाहिए ग्लास का. उसके बाद में 2 EVA के लेयर्स होते हैं, उसके बीच में सेल का सैंडविच किया जाता है. तो EVA इज एनकैप्सुलेंट. ये बेसिकली आपकी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है बाहर की, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक प्रोटेक्शन लेयर डालें. तो ये 2 लेयर्स की वजह से आपको ड्यूरेबिलिटी मॉडल की मिल जाती है. सेल्स के बारे में विल टॉक अ बिट आल्सो लेटर ऑन, बट मोनोपर्क के हाफ कट के सेल्स मल्टी बस बार टेक्नोलॉजी के साथ में आज अवेलेबल है. इसके अलावा जो लोएस्ट लेयर है दैट इज बैकशीट. टिपिकली आपके मॉड्यूल में अगर मॉइस्चर एब्सॉर्ब हो जाता है तो दैट इज नॉट गुड फॉर मॉड्यूल. आपके मॉइस्चर एब्सॉर्ब होने के बाद में शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फिर करोजन हो सकता है. आई थिंक दोज थिंग्स आर समथिंग व्हिच शुड बी वेरी वेरी केयरफुली चोजन. सो जब मॉड्यूल की बात करते हैं तो पर्दे के पीछे ये सब सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके स्पेसिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस तरीके से स्टोर किए जाते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो एंड कस्टमर को सिर्फ एंड प्रोडक्ट दिखता है, बट उसके पीछे की जो प्रोसेस है, ड्रामा के पहले का पूरा रिहर्सल है, दैट इज समथिंग व्हिच शुड बी नोन. एंड आज हमारा एफर्ट भी वही है कि हम उसको कस्टमर के सामने लेके आए. और जंक्शन बॉक्स जो है वो वेदर प्रूफ होना चाहिए, IP रेटिंग होती है उसकी, क्योंकि वो अल्टीमेटली पावर जो डिलीवर करेगा वो जंक्शन बॉक्स के थ्रू, कनेक्टर जो लगता है उसके थ्रू आगे पावर पास ऑन होगा इन्वर्टर को.
So very important component. These are all 7 components that are there in the solar panel. Great. The one of the biggest questions that we keep getting, even when we interact with our customers on a day-to-day basis, are सब पूछते हैं what are the possible failures that they can sort of expect in their solar panels. Nikhil? Right. कुछ एक सर्वेस किए गए थे और according to the surveys that the results that we are seeing, अगर 100 पैनल्स का फेलियर देखा गया है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है. टिपिकली ग्लास ब्रेकेज या सेल का क्रैकिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट 36% कंट्रीब्यूशन रहा है. ईवीए का यानी एनकैप्सुलेंट की जो बात कर रहे थे चिरंजीव जी, उसका डिग्रेडेशन होता है. अगर वो सही मटेरियल अगर चूज नहीं किया गया तो दैट कैन आल्सो लीड टू द फेलियर इन द लॉन्ग रन. इसके अलावा बैकशीट भी है, वो डिग्रेड करती है तो मॉइस्चर पेनिट्रेशन ओवर पीरियड बढ़ जाता है एंड दैट कैन लीड टू द करोजन आल्सो. सो अल्टीमेटली टॉप 3-4 रीजंस ऑफ फेलियर्स, बट वो आपके लिए कैसे मैटर करते हैं अल्टीमेटली. आपने तो इन्वेस्ट कर दिया, अब आपकी सेविंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पैनल के थ्रू पावर जब जनरेट होगी तभी आप ग्रिड से कम पावर लोगे, राइट. सो रिलायबिलिटी एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलायबिलिटी इज ऑल टू बी कोरिलेटेड विद आपने रॉ मटेरियल कैसे लिया है, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहा है. सो अगर वो गलत हो गया तो आपका लाइफ स्पैन शॉर्ट होना तय है. इट विल बी अ शॉर्टर लाइफ स्पैन दैन द एक्सपेक्टेशन. हम यहाँ पे 25 साल की बात करें, शायद आपका मॉडल 3-4-5 साल में इट विल डिग्रेड मच फास्टर देन यू एंटिसिपेट, शायद खत्म ही हो जाए. सेफ्टी के एंगल में भी देयर आर रिस्क्स बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट हार्श टेम्परेचर कंडीशंस, राइट. बाहर के एनवायरमेंटल कंडीशंस है, मॉइस्चर अगर पेनिट्रेट हो जाता है और शॉक्स आ सकते हैं, या फायर की रिस्क भी है अगर हॉटस्पॉट आते हैं, अगर उसका सही से डिजाइन नहीं किया गया है. परफॉर्मेंस के एस्पेक्ट में लोअर आउटपुट आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपका पैनल सही ढंग से चूज नहीं किया गया है, और वो सही ढंग क्या है हम शायद आगे बात कर पाएंगे. इसके अलावा जो ड्यूरेबिलिटी का एस्पेक्ट है, जो हमने डिग्रेडेशन की बात करी थी कि आपको 25वें साल में 80-85% पावर आपके हाथ में मिलनी चाहिए पावर आउटपुट में, वो अगर फास्टर डिग्रेड कर गया then you are not actually getting justice to your own investment. But the good news is that nothing to get worried here. Can we avoid all these issues and the impact that can be caused because of these issues? According to me, the answer is yes, provided we take care of some of the checklists, and we'll talk about that checklist maybe in the coming time. Great, thank you so much, Nikhil. Chiranjeev ji, in your opinion, what kind of solar panel failures, apart from these, that you have seen, and how does it sort of impact entire solar system? Yeah, so before answering that question, I'll just go to the earlier slide also on the construction of the module. I think what Nikhil was talking about, key construction of the module and the material used is really important. यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपकी वारंटी 25 साल की है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किस कंपनी का मॉड्यूल यूज कर रहे हो, वो कंपनी कितनी पुरानी है, उस कंपनी का तजुर्बा कितना है, क्योंकि ये पूरे जो मटेरियल आप दिखा रहे हो, ग्लास, ईवीए, बैकशीट, जंक्शन बॉक्स, ये अलग अलग क्वालिटी के मिलते हैं मार्केट में. तो आप अगर अपने मॉड्यूल का सर्टिफिकेशन करा रहे हो यूजिंग द बेस्ट कंपोनेंट्स, दिस इज लाइक अ सैंडविच. आपने सबसे अच्छा खीरा, टमाटर सब अच्छा यूज किया और उसको खाया और बहुत टेस्टी है, लेकिन जब प्रोडक्शन में आपने कुछ और यूज कर लिया तो फिर उसकी क्वालिटी इज नॉट गोइंग टू बी एज गुड. तो वहाँ पे पार्टनर्स लाइक सोलर स्क्वायर, उनका स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज ए इंटीग्रेटर जब वो सामने खड़े होके 5 साल का मेंटेनेंस ले रहे हैं, खुद फाइनेंस कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होती है यहाँ पे कि वो फैक्ट्री में इंस्पेक्ट करें, वो चेकलिस्ट जो निखिल बोल रहे थे अपना चेकलिस्ट में टिक करें कि क्या ये वही क्वालिटी का ईवीए है जो इस पैनल मैन्युफैक्चरर ने अपनी सर्टिफिकेशन में टेस्ट करवाया था, या उसने टेस्टिंग के टाइम पे अच्छा मटेरियल यूज किया है और बाद में सही नहीं यूज कर रहा है. एक और चीज जो मार्केट में बहुत बड़ी सुनने में आती है कि हमको तो पैनल बहुत सस्ता मिल रहा है, आपका ये पैनल इतना महंगा है. हर फैक्ट्री में, चाहे वो मर्सिडीज की गाड़ी बने या टोयोटा की, हर फैक्ट्री में साल में 1 से 1.5 से 2% रिजेक्शन निकलता है. ये जो रिजेक्टेड माल होता है जो फैक्ट्री में, जिसको हम बी ग्रेड बोलते हैं, ये माल बिना वारंटी के ये फैक्ट्रीज अपना माल बेच देते हैं टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर. कंपनी लाइक सोलर स्क्वायर विल नेवर बाय अ बी ग्रेड मॉड्यूल, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मार्केट में लोग हैं जो ये पैनल खरीदते हैं जिसकी कोई वारंटी नहीं होती. बट एक इनोसेंट होम ओनर है जिसको समझ में नहीं आता है कि ये पैनल की तो वारंटी ही नहीं है, लेकिन उसको वो इंडिकेटर तो यही बोलेगा कि सर 25 साल की वारंटी है. अब होम ओनर इसको कभी जाके चेक नहीं करेगा
और जब बाद में उसको मालूम पड़ेगा कि ये कंपनी से 5 साल बाद कि ये पैनल की तो वारंटी ही नहीं थी, तब तक वो इंटीग्रेटर ही गायब हो चुका होगा। सो ये बहुत ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्शन सही रहे, आप जिस पार्टनर से सोलर सिस्टम लगा रहे हो वो पार्टनर रिलायबल रहे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मैं ये लगा रहा हूँ तो मेरी कंपनी का फ्यूचर फोकस क्या है, कि मैं वेयर डू आई वांट टू बी। जैसे सोलर स्क्वायर वांट्स टू डू मे बी 1 million होम्स, तो मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द जर्नी ऑफ द कंपनी एंड द काइंड ऑफ लॉन्जिविटी कि वो लोग कितने दिन इस मार्केट में रहना चाह रहे हैं। कमिंग टू दी अदर क्वेश्चन स्नेहा, ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो प्रॉब्लम नजर आता है ऑन कंप्लेन्स, वो मोस्टली आता है हॉटस्पॉट्स का। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ नॉट डूइंग प्रॉपर मेंटेनेंस। अगर आपका छत पे पैनल का सिस्टम पूरा लगा हुआ है और अगर सोचो पैनल को क्लीन नहीं किया आपने, या कोई बर्ड का शिट गिरा है उस एरिया को क्लीन नहीं किया, एक आपका सेल के ऊपर आपका हॉटस्पॉट फॉर्म हो गया बिकॉज ऑफ द शेडिंग, या सिस्टम ठीक से नहीं लगा कि ट्री का ब्रांच आ रहा है और उसका शेड गिर रहा है पैनल पे, जिससे वो पैनल जल जाता है। और फिर होम ओनर जो है वो कांटेक्ट करता है हमको, और फिर हमको उसको समझाना पड़ता है कि हॉटस्पॉट इज बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर मेंटेनेंस और नॉट प्रॉपर इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एक्चुअल इंस्टॉलर है, कंपनी लाइक सोलर स्क्वायर, दे हैव टू बी प्रोफेशनल एंड टेक केयर कि सिस्टम सही से लगे, उसका मेंटेनेंस सही से हो। अगर वो दोनों चीज़ें ठीक की जाएं तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। एंड ऑफ कोर्स क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल इज रियली इंपॉर्टेंट। So that's, I think those are the main complaints what we see. Correct. Thank you so much, Saluja ji. Moving on, I have seen a lot of people, and there are so many videos on the internet that keeps on going around that people are walking on their solar panels. How can it impact your entire structure? एक छोटा सा video है. Let me just play the video, and then Nikhil can sort of explain what is happening in the video. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक आदमी इस मॉडल के ऊपर चल रहा है। ये आपको रियल लाइफ में दिख नहीं पाएगा। दिस इज द एक्सरे ऑफ द मॉड्यूल, वी कॉल इट EL इमेज, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस इमेज। ये एक स्पेशल कैमरा के थ्रू ही आपको दिख सकता है, बट वो कैमरा का जो आउटपुट है वो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है, पीपल डू नॉट फॉलो द रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस। जैसे सलूजा जी ने बोला, द इंस्टॉलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू फॉलो कि इंस्टॉलेशन मैनुअल का प्रोसीजर क्या है। उसमें ये क्लियरली स्पेसिफाइड रहता है, हर एक मैन्युफैक्चरर अपने मैनुअल में लिखता है कि आप इस पे चल नहीं सकते। आप नतीजा देख रहे हो, चलने के बाद में सेल्स क्रैक हो चुके हैं। अब वो भले ही बहुत अच्छा मॉड्यूल बन चुका था फैक्ट्री में, वो आपके घर तक आते आते खराब हो गया और आपको पता ही नहीं है, आपने लगा भी दिया, एंड you are already like wasting your investment thereafter. So very important that even the installers or the maintenance people, there is a tendency that people will walk on the modules while fixing it. Maybe maintenance करते वक्त में cleaning करना है तो वो छत के ऊपर अगर सही से systems नहीं दी है, ladders नहीं दिए है, तो they will walk on the modules and ultimately that can cause damage. Exactly. Nikhil, speaking on, about the maintenance bit, a lot of the times, in fact, we have also heard from our potential customers that उन्होंने कहीं तो सुना है कि maintenance नहीं चाहिए, because other, local vendors must have told them that there's no need of a professional maintenance. You can simply throw water on your panel and can maintain it. What is the actual fact? What is the actual truth, Nikhil? The truth is, it's an electrical equipment. आपको कार के मेंटेनेंस के लिए भी कार को सर्विस स्टेशन लेके जाना पड़ता है, तभी जाके आपकी वारंटीज को ऑनर किया जाता है। अगर आप आपका मेंटेनेंस चूक जाते हो तो आपको डेफिनेटली नोबडी इज गोइंग टू ह्यूमर और एंटरटेन। आप अगर थोड़े से फाइन प्रिंट्स कहीं पे भी अगर मैनुअल में पढ़ते हो तो उसमें आपको नजर आ जाएगा कि इवन मैन्युफैक्चरर्स डू रेकमेंड दैट आपका साल में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का चेक होना चाहिए। आपके नंबर ऑफ क्लीनिंग साइकिल्स आपके मॉड्यूल्स में परफॉर्म करने चाहिए, जिसकी वजह से आपकी मॉड्यूल की हेल्थ, जैसे बर्ड ड्रॉपिंग है या फिर सॉइलिंग बहुत ज्यादा है। इंडिया इज अ वेरी सॉइल प्रोन कंट्री, यानी यहाँ की जो डस्ट है वो बहुत स्टिकी टाइप की डस्ट है, वो आपके पैनल पे चिपक जाती है। तो आप कन्वेंशनली टिपिकली घर के अंदर जो मॉप यूज होता है या कोई कपड़ा है उससे आप साफ करने की कोशिश करते हो, वो कपड़ा पहुंचता नहीं है फारदेस्ट डिस्टेंस पे,
तो आसान यही है कि मॉड्यूल के ऊपर चढ़ा जाता है एंड दैट विल कॉज डैमेज अगेन. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक प्रोफेशनल सेटअप के साथ में यू विल गेट all these cares. Home setup में we haven't seen many who care for the module so much. इसीलिए Solar Square has special packages for the maintenance also to be offered to our customers. तो maintenance बहुत जरूरी है. आप maintenance के बिना आपकी वारंटी कागज के टुकड़े के बराबर है, right? Great. Thank you, Nikhil. We will obviously discuss what Solar Square provides for their customers in terms of maintenance. Chiranjeev ji, आपसे पूछनी थी कि यार कितना important है maintaining this entire structure, and what kind of maintenance do you recommend as well? So I think maintenance is really important. It is not just solar panel, but you have an inverter. आपके पास BOS है, that is the balance of system. आप उस सिस्टम को कैसे यूज कर रहे हो, आपके पैनल को पीरियडिकली इंस्पेक्ट करना, अगर कोई पैनल में हॉटस्पॉट आ गया है तो उस पैनल को रिप्लेस करना ताकि उसकी वजह से जनरेशन लॉस ना हो, इन्वर्टर में द राइट पैरामीटर्स फॉर द सेटिंग्स इन द इन्वर्टर, एंड देन आपका अगर कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, कहीं छत पे कोई अगर रोडेंट हो, रैट्स हो, कुछ बाइट कर लिया किसी केबल को, सो मेंटेनेंस इज इम्पोर्टेंट. And आजकल the kind of lifestyle which we are seeing in India, everybody is nowadays working. किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो अपने छत पे जाके कोई अपना पैनल और अपने सिस्टम को मेंटेन करना, कहीं कुछ गलत पैरामीटर्स चूज कर ले अपने इन्वर्टर में. सो आई फील इट्स अ वेरी वेरी मिनिमलिस्टिक कॉस्ट. एंड अगर आपको आज के दिन अगर कोई ऐसा इंटीग्रेटर मिलता है जो बोल रहा है मैं सिस्टम लगा के मेंटेन करूंगा, तो वो तो आपकी खुशनसीबी है. बिकॉज लोग चाहते हैं कि मैं सिस्टम लगाऊं और भाग जाऊं, उसके बाद आऊं नहीं कभी, और मेंटेनेंस का हेडेक जो है वो होम ओनर खुद अपने आप देख ले. तो आज के दिन AMC लेना इटसेल्फ शोज कमिटमेंट टू द कस्टमर कि वी आर हियर एंड आपके सिस्टम को हम चलाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो वी आर विद यू. सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इनटू एन AMC with the system integrator. थैंक यू सो मच सनुजा जी. निखिल, एक सवाल आपसे. ये जो कुछ होमओनर्स they go ahead and they maintain, just for knowledge sharing to the with the audience right now, how it's also a hazard for the homeowner, correct? So how can it be almost life threatening to them? If you could shed some light on that bit. राइट, मैं दो एस्पेक्ट में इसको बताऊंगा. एक है कि सिस्टम के लिए उसका थ्रेट कैसे हो सकता है, एंड सेकंड आई थिंक फॉर देम हाउ इट कैन इम्पैक्ट. सो एक सिस्टम के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो कोई भी मैन्युफैक्चरर आपके मॉड्यूल के ऊपर जो क्लीनिंग किट यूज होना है उसका एक स्पेसिफिकेशन देते हैं. यू कांट यूज एनी क्लीनिंग किट दैट इज अवेलेबल. लेट्स से आप डीमार्ट में नॉर्मल ब्रश जो मिलता है, जो जिससे हम पोछा मारते हैं, उसका यूज नहीं कर सकते. यू नीड स्पेशलाइज्ड ब्रशेस, एंड ये स्पेशलाइज्ड ब्रशेस यूजुअली होम ओनर्स के पास नहीं होते. दे आर वेरी वेरी स्पेशल नाइलॉन ब्रिसल्स के ब्रशेस का यूज होना चाहिए टू गेट रिड ऑफ द डस्ट विच इज ऑल्सो सॉफ्ट ऑन द ग्लास, क्योंकि अल्टीमेटली वो ग्लास को डैमेज नहीं होना चाहिए इन द लॉन्ग रन, राइट? अदरवाइज क्रैक्स आ सकते हैं, एंड ऑल द थिंग्स दैट वी हैव सीन द फेल्यूर, दोस कुड बी द एंड रिजल्ट. तो हमें इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वो क्लीनिंग का किट वो इंस्टॉलर्स के ही पास हो सकता है जो आपकी सिस्टम मेंटेन करती है. सो यू कांट बाय दैट किट. इट विल बी एडिशनल कॉस्ट फॉर यू just to maintain your panel over period. So rather than that, we recommend, why don't you take the package, and that will be much easier, cheaper, so that we can share our tools across multiple sites. The second aspect that you mentioned, अब ये जो मेंटेनेंस करते हैं उसमें Nikhil, just to add one point before you go ahead, कि अगर राइट ब्रशेस नहीं यूज किया गया, पैनल की वारंटी क्लॉज में लिखा होता है कि आपकी वारंटी वॉइड है, तो कई लोग इट इज बीइंग पेनी वाइज पाउंड फुलिश कि आपकी पूरी वारंटी चले जाएगी क्योंकि आपने रॉन्ग ब्रश यूज किया जिससे क्रैक्स फॉर्म हुए. गो अहेड निखिल. करेक्ट. एंड द सेकंड एस्पेक्ट इज, जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं, आपके घर पे जो वोल्टेजेस जिस लेवल पे सोलर सिस्टम काम करती है वो टिपिकली 600-800 वोल्ट्स की रेंज में रहेंगे, डिपेंडिंग ऑन वो सिंगल फेज है या 3 फेज है. 400 से 600 वोल्ट्स इज अ लीथल वोल्टेज. स्पेशली डीसी केबल्स, डीसी वोल्टेज में अगर 400 वोल्ट्स की बात कर रहे हैं तो आदमी चिपक सकता है, राइट? इट कैन लीड टू डिजास्टर इवन इफ वन इज नॉट इमेजिनिंग वन. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप एक प्रोफेशनल
जो ट्रेन्ड टेक्नीशियन है उनके हाथों से अगर ये सारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक्स करवाए, you will also be safe from handling a high voltage system yourself. Thank you, Nikhil. Thank you, Nikhil. This is a very, very important tip, almost like a disclaimer for the audience right now. Please go for a professional maintenance for your system, for your own safety. There's no better way to say it at this point. Please, कुछ भी सही solar लो, but सही solar maintenance, professional maintenance चुनिए. Moving forward, Nikhil, how do solar panels differ depending on the grade of the solar cells? जैसे चिरंजीव जी ने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको A ग्रेड के पैनल्स मिलते हैं, B ग्रेड के पैनल्स मिलते हैं. I think going further, there is C and D grade panels also getting made available in the market. आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो, यहाँ पे इमेजेस है. आपके मॉड्यूल के अंदर जो सेल यूज हो रहा है, वो एड सबने सुनी होगी क्या, आपके टूथपेस्ट में नमक है, वैसे आपके टूथपेस्ट में, आपके सोलर पैनल में सही सोलर सेल यूज हुआ है क्या? सो आप ए ग्रेड का सेल इज अ प्रेफरेबल सेल ऑप्शन. बी ग्रेड में थोड़े विजुअल डिफेक्ट्स होते हैं, प्रोबेबली थोड़ा सा फंक्शनल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. सी ग्रेड तो यूज ही नहीं करना चाहिए. डी ग्रेड में तो ये टूटा हुआ है तो कुछ काम का ही नहीं है. सो अल्टीमेटली lots of parameters are there which actually classify these cells also into A, B, C, D. ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि आपके घर में जो पैनल आ रहा है वो ए ग्रेड सेल्स के साथ में ही बन के आ रहा है, और इसके लिए बैकएंड में सेटअप होना जरूरी है. The manufacturer should allow you to do the inspections. They should allow you to do the checks during the production is happening, and all those things are usually as a practice is not being followed in the market. तो उसकी वजह से it is very easy. अगर आपको कुछ सस्ते में मिल रहा है तो सबसे पहले आपके कान खड़े हो जाना चाहिए, भाई क्यों, क्या मुझे बी या सी ग्रेड का पैनल दिया जा रहा है, ये हो सकता है. सो दैट्स द टिप आई वुड से. आप ये जानिए कि आपके पास में ये बैकएंड का चेक है या नहीं है. पर्दे के पीछे मॉडल बनने से पहले वाला चेक अगर आपके पास में है तो यू आर सेफ. राइट. स्पीकिंग ऑफ द चेक्स, एक सही सोलर पैनल का जो मस्ट हैव्स होता है, जो you cannot absolutely ignore that. Nikhil, what according to what are those must haves for you? Right. जैसे क्या आपके पैनल में ये सब होना चाहिए? इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन. आप देख रहे हो सारे के सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स यहाँ पे पॉपुलेटेड है. आपके फैक्ट्री में जब मॉड्यूल बन रहा है उसमें ओवरसाइट हो सकती है. आपके क्वालिटी का अगर कंट्रोल आपने इंस्टीट्यूट नहीं किया है, या आपको विजिबिलिटी नहीं है एज ए इंस्टॉलर ऑल्सो, अगर विजिबिलिटी नहीं है तो एक्चुअली दैट कैन ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ हार्म. तो क्वालिटी कंट्रोल नहीं है तो रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, वारंटी सबके ऊपर आंच आ सकती है. पैकेजिंग का मटेरियल कैसे यूज किया जा रहा है, क्योंकि आपके घर तक वो मॉड्यूल्स किस हालत सूरत में पहुंचते हैं. कई बार हमने देखा है कि लॉजिस्टिक्स का सही से इस्तेमाल नहीं किया जाता. एकदम लोकल जुगाड़ वाली गाड़ियां, उसके अंदर मॉड्यूल्स भरे जाते हैं एंड दे गेट ट्रांसपोर्टेड टू योर हाउस. ये सब अगर होता है तो अल्टीमेटली जो क्रैक्स की बात हमने करी, जिसमें हमने वीडियो में देखा कि अगर आदमी चल रहा है तो वाइब्रेशंस कैन कॉज डैमेजेस टू द सेल्स ऑल्सो. अगर आपने मेंटेनेंस या आफ्टर सेल सर्विस सही से नहीं दी है, स्टोरेज में अगर सही से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन नहीं है, जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल कैसे रखा गया है, इवन एंड पैनल किस हालत सूरत में आपके वेयरहाउस में रखा गया है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है. एंड लास्ट कपल ऑफ पॉइंट्स, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस के वक्त में जो चेकलिस्ट हम बात करते हैं उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस हैंडलिंग हो सकती है. इसके साथ में डैमेजेस आर द आउटकम. एंड आपका ओईएम का पार्टनर जो मैन्युफैक्चरर है, what is the experience of the manufacturer, what is the R&D that they have done in the field, what is their financial strength, what is the technical strength. All these factors are very very critical when you choose one for your own solar panel. तो क्या आपके पैनल में ये सब होना चाहिए? The answer is no. और सोलर स्क्वायर कैसे इंश्योर कर रहे हैं, of course I will also talk about that. So one, factory qualification. Solar Square has instituted a process जहाँ पे हम certifications के validations, audit के checkpoints, everything is done at a factory level, and my team ensures it that we qualify it thoroughly. Second, जब production हो रहा है उस वक्त में हमें एक pre-dispatch inspection या फिर inline inspection
ये आपके हाथ में होना चाहिए, जहाँ पे हर एक मॉड्यूल जो आपके फैक्ट्री में बनता है, आपके घर पे आने वाला है, उसका बैकएंड चेक्स हमारे पास में अवेलेबल हो। पैकेजिंग का सही स्टैंडर्ड, लोडिंग जब मॉड्यूल के अंदर करते हैं गाड़ी के अंदर, वो सही से फॉलो होना बहुत जरूरी है। हमने आफ्टर सेल्स के बारे में बात करी, तो सोलर स्क्वायर कम्स विद अ पावर बूस्ट विजिट पैकेज, जिसमें हर क्वार्टर में, हर महीने में, डिपेंडिंग ऑन द पैकेज दैट यू चूज, हमारी टीम प्रोफेशनली दे कम टू द साइट, दे विल एंश्योर दैट आपकी क्लीनिंग सही टूल्स के साथ में हो रही है, आपके सारे प्रिवेंटिव चेक्स जो इसेंशियल इलेक्ट्रिकल चेक्स हो, मैकेनिकल चेक्स हो, वो सारे के सारे चेक्स ये विजिट्स के दरमियान हम करते हैं। स्टोरेज का हाइजीन, यानी आप जब मॉड्यूल फैक्ट्री से आया, आपके वेयरहाउस तक आया, वहां पे अनलोडिंग कैसे की गई, उसे स्टोर कैसे किया गया, हैंडलिंग कैसे की गई, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। हम कई बार देखते हैं कि द अनट्रेन्ड और अनस्किल्ड लेबर, उनको अगर किसी ने कुछ भी बताया नहीं, सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, दे विल सिंपली टेक द मॉड्यूल्स ऑन देयर हेड एंड कैरी इट। ये 2 मीटर क्रॉस 1 मीटर का पैनल होता है, तो वो अपने सिर पे रखेंगे, द सेल्स विल क्रैक। सो एक प्रोटोकॉल है जिसको हमें अच्छे से फॉलो करना चाहिए। इंस्टॉलेशन के वक्त में वो शिफ्टिंग एंड हैंडलिंग बहुत अच्छे से होना जरूरी है। द स्ट्रॉन्ग पार्टनर, उनकी कैपेबिलिटी, उनके साथ में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्ट्रेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत बहुत जरूरी है। तभी जाके आपके घर पे जो पैनल लगेगा, वो पर्दे के पीछे ये सब हुआ होता है, तब जाके एक अच्छा पैनल आपके घर के छत के ऊपर लगेगा। अदरवाइज यू विल बी प्रोन टू दी लास्ट स्लाइड जो हमने देखी, जिसमें बहुत सारे रेड कलर के अलर्ट्स आपके लिए थे। Right. Thank you, Nikhil. Moving on, I think this is a part that we have covered, but again, coming to the importance of professional maintenance and how does Solar Square sort of solves for it. Nikhil. राइट, जैसे मैंने 1-2 मिनट पहले बताया कि आपका सोलर का लाइफ लंबा है, राइट, ये टिकना चाहिए, और अगर आपने सही से मेंटेन नहीं किया तो दिस लाइफ कैन ड्रामेटिकली रिड्यूस। तो आपके लिए प्रिवेंटिव का और करेक्टिव का मेंटेनेंस का सेटअप बहुत जरूरी है। जो इंस्टॉलर्स बोलते हैं कि आपके मॉडल को क्लीनिंग की जरूरत नहीं है, उनके लिए इट्स अ चैलेंज दैट मोस्ट ऑफ द मॉडल OEMs, they specifically write in their operational manual that a specific preventive maintenance every year is mandatory। आप क्लीनिंग करिएगा, अगर ब्रेकडाउन होता है तो देयर शुड बी अ सिस्टम कि वो करेक्शन के लिए आपके पास में मैन पावर हो, टेक्नीशियंस हो, वो आपको टाइमली मैनर में रिस्पॉन्ड करके आपका सिस्टम फिक्स कर पाए। मॉडल की डीप क्लीनिंग के बारे में तो हमने बात करी ली, और इसके अलावा आफ्टर सेल्स सर्विस का एक स्टेबल आपके सिटी लेवल पे टेक्नीशियंस का एक नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। वी आर ऑल्सो वेरी प्राउड दैट with this mission of going to 1 million solar homes getting installed through Solar Square, हम employment भी generate कर रहे हैं, and that is also getting contributed in small fraction if not more to boosting the sector itself. Right. Nikhil, since we are also pioneering this thing, we are very aggressively trying to say that how important maintenance is and after sales packages, and we want to handhold our customers and not leave them. Speaking of our Power Boost after sales package, Nikhil, if you could share some insight on that. Right. So जैसे मैंने बताया कि क्वार्टरली क्लीनिंग से लेके मंथली क्लीनिंग के पैकेजेस अवेलेबल है। यू कैन चूज एट द टाइम ऑफ बाइंग योर सिस्टम। आप में पैनल की डीप क्लीनिंग उसमें मिलेगी। स्पेयर्स, रिपेयर्स, वारंटीज की पहले 5 साल you don't need to worry about it, will be completely taken care by our team, and we especially have some great offerings for our customers, जहाँ पे आपके सोलर पैनल के थ्रू जो जनरेशन होगा, उसके थ्रू जो आपकी सेविंग होने वाली है, उसकी सेविंग्स की गारंटी वाला पैकेज भी आपके पास में हम पहुंचाते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे राइट साइड में 2 इमेजेस है। एक नीचे वाली इमेज है जिसमें एक पैनल है जिसको अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया है, उसकी डीप क्लीनिंग नहीं की गई है। उसका परफॉर्मेंस 30% तक घट सकता है, एंड दिस इज ऑन अ लोअर साइड। आई एम सेइंग दिस कैन गो एज हाई एज 40 to 50% अगर ये लंबे समय तक इसकी क्लीनिंग नहीं की गई है। बट अगर आप सही से मेंटेन करते हो तो आपको जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस आपका है पैनल का, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट का ROI सही से आएगा, दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल कि हम वो पावर बूस्ट आफ्टर सेल्स पैकेजेस के थ्रू सोलर स्क्वायर प्रोवाइड्स दैट फैसिलिटी टू ऑल आवर कस्टमर्स। Great. Thank you so much, Nikhil.
Moving on to another very critical thing, we have touched upon it very slightly before. But what are model warranties that are currently offered by manufacturers? निखिल, अगर आप डिफरेंस समझा दो, मॉड्यूल वारंटीज क्या होता है, परफॉर्मेंस गारंटीज क्या होता है, एंड हाउ इज इट इम्पोर्टेंट फॉर आवर ऑडियंस टुडे? राइट, सो आई बिलीव चिरंजीव जी ने बताया मॉड्यूल वारंटीज टिपिकली 10 से 12 साल की आती है डिपेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी। आजकल वो मोनोपर्क हाफ कट में सारे 12 साल की वारंटीज ही आती है। इसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे कुछ डिफेक्ट आए हैं तो डेफिनेटली उसमें नो क्वेश्चन आस्क रिप्लेसमेंट्स आ जाती है। एंड सेकंड इज परफॉर्मेंस वारंटी, जिसमें आपको 27 से 30 साल की वारंटी आती है, क्योंकि मॉड्यूल का डिग्रेडेशन रेट तय है। अगर उसे सही से मेंटेन किया गया तो आपका जो पावर आउटपुट है, आपकी एफिशिएंसी है, वो मीट होनी चाहिए। बट अगर आप उसको सही से मेंटेन नहीं करोगे तो नहीं होगा। उस केस में इसको कुछ किया नहीं जा सकता। दिस वारंटी कैन नॉट बी ऑनर्ड बाय एनीबॉडी ऑन अर्थ, बारिंग मतलब किसी के पास में आप अपील भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने डिफॉल्ट किया इन मेंटेनिंग योर पैनल। सो उसका आउटकम इज दैट मॉडल वारंटीज विल गेट वॉइड, देयर विल बी नल एंड वॉइड। आपके पास में कोई इसके ऊपर फिर क्वेश्चन करने का मौका भी नहीं रहेगा कि अरे आप पहले क्यों नहीं बताया था। तो द इंटेंट ऑफ टुडेज डिस्कशन इज टू एक्चुअली एंश्योर दैट हम वो फाइन प्रिंट में से कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे ऑडियंस के सामने ला पाए और बता भी दे कि यार ये सारा इसेंशियल है। क्योंकि अवेयरनेस नहीं है तो हम इसका इस्तेमाल सही से नहीं करते हैं, हमारी मेंटेनेंस सही से नहीं करते। तो आई बिलीव दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मॉडल की वारंटी तो है, बट अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस उसको ऑनर किया जाएगा और अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस को ऑनर नहीं किया जा सकता है, राइट? ये समझना बहुत जरूरी है। Exactly. And in that essence, I think we have also identified some terms and conditions, some gaps that sort of typically what industry practices. यहाँ पे Nikhil, you want to take over? राइट राइट, जैसे मैंने Warranty, फिर yeah. पहले बताया कि ईयरली मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है। आप रेड कलर में जो फाइन प्रिंट लिखी है, दिस इज ऑपरेशनल मैनुअल, दिस इज नॉट फॉर द कस्टमर्स, एक्चुअली दिस इज फॉर द इंस्टॉलर एंड द एएमसी पार्टनर, आपका आफ्टर सेल सर्विस पार्टनर, उनके लिए बहुत जरूरी है। तो ये कई बार हमारे कस्टमर्स को पता ही नहीं होता है कि अच्छा ये भी करना जरूरी है। एंड अगर ये नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली पैनल की वारंटीज वॉइड हो सकती है। वो जिसने इंस्टॉल किया अगर उसने ये आपको नहीं बताया है तो यू कैन गेट इन ट्रबल। जैसे यहाँ पे एक एनुअल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की विजिट होना जरूरी है, ये लिखा हुआ है। अब कितने लोग करते हैं, आई डोंट नो। सेकेंड इज आई थिंक शैडो की सिचुएशंस के बारे में हमने बात करी। आई डोंट थिंक पीपल आर वेरी वेरी साइंटिफिक और लॉजिकल इन द अप्रोच। जिस तरीके से ये सोलर सिस्टम एक्चुअली इंस्टॉल होनी चाहिए, जिसपे शैडोज नहीं आएंगे, शैडो फ्री जोन में बहुत अच्छे से एनालिसिस करके इसको लगाना चाहिए, इसको कई बार वायोलेट किया जाता है, जिसकी वजह से हमने हॉटस्पॉट की बात करी। वैसे टाइप्स के डिफेक्ट्स आपके पैनल में आ सकते हैं। लास्ट आई थिंक एक और एस्पेक्ट यहाँ पे लिखा है कि क्लीनिंग का एक टूल किट होता है, मॉडल क्लीनिंग का किट होता है, उसको यूज करना चाहिए। अब मॉडल किट क्या होता है, राइट? ये बहुत बार लोगों को पता ही नहीं होता है, तो लोग जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसको यूज कर लेते हैं। बट अल्टीमेटली इट हैज टू बी अप्रूव टाइप ऑफ मॉडल ब्रिसल्स, ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं जो मॉडल के ऊपर फ्रेंडली होते हैं, उसका यूज करना बहुत जरूरी है। दीज आर एक्सपेंसिव ब्रशेस, सो डजंट मेक सेंस दैट यू इन्वेस्ट इन बाइंग इट, रादर वी रेकमेंड आप वो पैकेजेस में इन्वेस्ट करिए। राइट, थैंक यू। चिरंजीव जी, अगर आपके मॉडल वारंटी के बारे में बात किया, हाउ कैन अ कस्टमर सॉर्ट ऑफ safeguard themselves, or what do they should look for in these warranty to protect themselves? Because most of us will not go read such documents, or we do not have understanding. So what would your tips be for our audience today? सो जनरली कोई भी प्रोफेशनल अगर मॉडल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनका वारंटी डॉक्यूमेंट उनके वेबसाइट पे भी अवेलेबल होता है, एंड होमओनर्स कैन इजीली गो टू द वेबसाइट एंड दे कैन लुक एट दिस डॉक्यूमेंट and just ensure कि they are following the best practices so that they don't have a warranty void kind of a situation. Right. Thank you so much, Chiranjeev ji. Coming to what Solar Square does, and how do we cover for these terms and conditions and make warranty claims easier for our customers? Nikhil, how do we protect our customers? So ये जो slide है probably ये हमारे पूरे discussion का सार है. This is the excerpt of whatever we discussed today.
एक मॉड्यूल बनने के पीछे, पर्दे के पीछे क्या क्या होता है, वो सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। प्लानिंग है, उसका प्रोडक्शन का चेक्स है, आपके क्वालिटी के चेक्स है, पैकेजिंग का कंट्रोल बहुत जरूरी है, शिपिंग के वक्त में आपको लॉजिस्टिक्स में कैसा हैंडल किया जा रहा है, डिजाइनिंग सही से हो रही है नहीं हो रही है, इंस्टॉलेशन के स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, आफ्टर सेल सर्विसेज को आपको कितना ध्यान दिया जा रहा है। ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड सोलर स्क्वायर has gone to the depth of identifying what exactly is essential at every step, and this is being solved in the back end even without my customers knowing it. आज हम वो पर्दा हटा रहे हैं so that my customers also know it, and this is something that you will never see that anybody will openly come and talk about these aspects to you. Solar Square does it, so we proudly say that we do it, and that ensures that the ultimately module that is reaching your campus is safe in terms of you are protecting your investment. Great. And of course, with investment comes a plan, and we have a very special plan for our customers as well. Nikhil, over to you in the zero investment. So Solar Square provides you with financing options. अगर आपको immediately पूरा का पूरा 100% finance खुद के पैसों से नहीं करना है, we provide you with a suitable option. We call it a zero investment plan. अब ये जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? टिपिकली आपके टाउन में जो आप पावर खरीदते हो वो 8 रुपए से 13 रुपए 14 रुपए के बीच में वेरी करेगी, कुछ टाउन्स में शायद 7 रुपए होगी। एक्चुअली आपकी जो इन्वेस्टमेंट अगर 100 रुपीज की है तो उसका पूरा का पूरा भुगतान करने के लिए आपको 60 महीने लगेंगे टिपिकली। एंड बेस्ट अगर केस ले, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में पावर बहुत हाई कॉस्ट में अवेलेबल है, 13 रुपए इन द हाईएस्ट स्लैब। तो वहां पे 36 मंथ्स 3 इयर्स में आपका पे बैक आ जाता है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट द प्लान्स विल वेरी, बट सिंपल है, आपको जो डाउन पेमेंट करना है डे 1 पे, वो आपको 3-4 महीने बाद आपके सब्सिडी के फॉर्म में रिटर्न आ जाएगा। तो आप सबको पता है पीएम सूर्य घर में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग सब्सिडी टू होम ओनर्स, जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000, 2 के लिए 60 और 3 के लिए 78,000 रुपए की सब्सिडी अवेलेबल है। सो व्हाट दिस प्लान इज दैट आप उतनी इन्वेस्टमेंट करिए जितनी आपकी सब्सिडी की अमाउंट है। दिस नीड्स टू बी डन ऑन डे 1, एंड आपको 3-4 महीने में ये आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाएगी, डायरेक्टली आपके अकाउंट में आती है, जैसे एलपीजी की सब्सिडी पहले आती थी। तो इट गेट्स रेमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट टू योर बैंक अकाउंट। सो आपका डाउन पेमेंट और सब्सिडी एक दूसरे के साथ में बैलेंस हो गया। उसके बाद में जो मंथली ईएमआई रहेगा, जो भी ड्यूरेशन आपके प्लान के हिसाब से आता है, वो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के सेविंग्स के बराबर रहेगा या उससे ज्यादा होगा, यानी सेविंग ज्यादा होगी, ईएमआई कम होगा, सेविंग ज्यादा होगी या बराबर होगी। सो दिस इन टर्न वी आर सेइंग दैट भाई आप इन्वेस्ट करिए, 3 से 5 साल में आपकी सिस्टम की कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो हो गई। उसके बाद में यू आर हैविंग सोलर पावर ऑल योर लाइफ up to 20-25 years free of cost. You are going to enjoy the benefit. So investing in solar is actually a no brainer as of today. Your down payment is equal to subsidy and your monthly EMI is as good as the electricity bill that you pay to the DISCOM today. So दोनों केसेस में आपके लिए बहुत राहत है इस प्लान के थ्रू। Right. Nikhil, can we then safely say that if we go solar today, then once we break even, then it is absolutely no jhanjat of paying Bijli ka bills? Is that a very strong claim that we can make? Provided आप AMC maintain after sales services, Yes. please continue with that. It is very important, critical aspect in the solar system. Yes, absolutely. So zero Bijli ka bill provided the maintenance is happening properly. All right. Moving on with the webinar. Okay. There are some frequently asked questions. In fact, I have been tracking all the questions that have been coming from the audience. हमने panel तो discuss कर लिया है, but कुछ overall system के बारे में we continuously get questions from audience right now and of course from our customers. So we will tackle that a bit. Basic question है कि आपके घर के लिए कितना kilowatt of solar do you require? And Nikhil will explain the 3 criteria that would determine how many kilowatt of solar do you require for your home. Nikhil, over to you. So 3 important aspect है आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आपका एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल साल का आपका कितना आता है, राइट? उसके हिसाब से हम सोलर से कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होने चाहिए
सो दैट आपका 90 to 100% बिल कॉम्पेंसेशन में चला जाए. दिस इज हाउ वी थिंक इन डिजाइनिंग योर सिस्टम. सो उसमें 1 किलोवाट में, जैसे सोलर अगर 1 किलोवाट का लगा है तो आपको 1250 से 1450 इस रेंज में आपको यूनिट्स मिलेंगे साल में. डिपेंड्स ऑन द ज्योग्राफी इन विच यू आर लोकेटेड. जैसे दिल्ली में जाएंगे तो इट बी मच लोअर, 1250 का जनरेशन आएगा. वैसे आप अगर डाउन साउथ जाओगे, बैंगलोर में एनवायरमेंट कूलर इन बैंगलोर एंड रेडिएशन इज गुड, तो वहां पे आपको 1300-1400 के आसपास भी जनरेशन मिल सकता है. सो एक है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल साल का कितना है, उसके हिसाब से सोलर सिस्टम की कैपेसिटी की डिजाइन की जा सकती है. दूसरा है आपका सैंक्शन लोड. तो ये गवर्नमेंट के मैनुअल्स में लिखा होता है कि आप किस लोड तक आपका सैंक्शन लोड है, तो उसके ऊपर आप कितनी सिस्टम लगा सकते हो. यानी आपका सैंक्शन लोड अगर 3 किलोवाट का है तो 3 किलोवाट की सिस्टम आप ऐसे ही लगा सकते हो. अगर आपका लेट से 2 किलोवाट रहा तो एक लोड चेंज का एक प्रोसीजर होता है, वो फॉलो करके हम इस सैंक्शन लोड को चेंज कर सकते हैं. 2 से 3 किलोवाट में चेंज करके वी कैन पुट अ सिस्टम. रूफटॉप का स्पेस, जो हमने शैडो की बहुत बात करी इस पूरे के पूरे वेबिनार में, तो रूफटॉप पे शैडो फ्री स्पेस कितना अवेलेबल है, दैट विल आल्सो डिटरमिन कि आप कितना सिस्टम एक्चुअली फिजिकली लगा सकते हो. तो एक है आपने बिल के हिसाब से एनालिसिस कर लिया, आपने लेट्स से पॉलिसी के हिसाब से कितनी लग सकती है उसका एक चेक पॉइंट ले लिया, एंड आपके घर के ऊपर फिजिकल स्पेस कितनी है शैडो फ्री. तो 1 किलोवाट के लिए लगभग 80 स्क्वायर फीट ऑन अ हायर साइड. This much of shadow free space is essential. Thank you so much, Nikhil. Moving on, how much will the right solar cost? But वो cost से पहले there's some things that we need to talk about, because like Chiranjeev ji also said that cost सब कुछ नहीं होता है. उसके पहले background में बहुत कुछ checks होती है, which is important. We have spoken about so many of those checks. Nikhil, what is your opinion on that? So I just want to share one very good anecdote, जिसमें the bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low cost is forgotten. Right? Yeah. तो आप अगर सस्ते के चक्कर में जा रहे हो without balancing the quality aspect, I think कहीं ना कहीं आप compromise करोगे सिस्टम के सिलेक्शन में, सिस्टम के इंस्टॉलेशन प्रैक्टिसेस में, या फिर द मैनर इन विच आपका सिस्टम मेंटेन होना चाहिए उसमें. सो बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं. हमने मॉडल की वारंटीज के बारे में बात करी, हमने स्ट्रक्चर्स का इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि विंड स्पीड आपका जोन का, आपकी सिटी का जितना विंड स्पीड है उसको फाइट करने के लिए उतना मैकेनिकल इंटीग्रिटी वाला स्ट्रक्चर जरूरी है. सोलर स्क्वायर हैज इन्वेस्टेड हेवीली. हमारा स्ट्रक्चर IIT बॉम्बे अप्रूव्ड है, and this is something which is very very unique. Our structure is WindPro mount. Probably we'll have a similar webinar concentrating on inverter and webinar in time, inverter and WindPro structures in time to come. इसके अलावा जो भी छोटे मोटे कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जिसे हम बैलेंस ऑफ सिस्टम बोलते हैं, तो डीसी केबल्स है, एसी केबल्स है, द मीटर्स दैट आर यूज्ड इन योर कंप्लीट सोलर पैकेज, आपके कनेक्टर्स किस ग्रेड के यूज किए जाते हैं, आपके नट बोल्ट्स वॉशर्स की क्वालिटी क्या है, बहुत सारे चेक पॉइंट्स जरूरी है. और अच्छी क्वालिटी मैटर करती है. अच्छी क्वालिटी कम्स विद अ स्लाइट बिट ऑफ अ प्रीमियम, स्लाइट बिट ऑफ अ ओवरहेड कॉस्ट, बट लंबे समय के लिए वो आपके लिए सही है. एंड 360 डिग्री मेंटेनेंस अगर 5 साल का आपके पैकेज में इंक्लूडेड है या नहीं है. इट इज नॉट ओनली द 360 डिग्री आफ्टर सेल्स दैट इज इम्पोर्टेंट. इसका कई बार मिस इंफॉर्मेशन के थ्रू, हाँ सर आप तो कॉल करिएगा, हमारी टीम आ जाएगी जब भी कोई इशू होगा. भाई जब भी इशू होगा नहीं, इशू ना हो इसके लिए पहले से आना जरूरी है. सो प्रिवेंटिवली, प्रीएम्प्टिवली साइट विजिट्स करके ये इशू ना आए, उसके लिए मेंटेनेंस सर्विसेज देना बहुत जरूरी है. एंड ऑल अदर कॉस्ट विच आर डायरेक्टली द स्टैट्यूटरी फीस या फिर नेट मीटरिंग की कॉस्ट है, जीएसटी इंक्लूजन के साथ में ये सब पैकेज में आपके पास में आना चाहिए. Right. Nikhil, if we have to sort of give like a ballpark figure, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं ऑडियंस से कि टिपिकली 3 किलोवाट सोलर सिस्टम कितना लगेगा, 5 किलोवाट, समवन एक्चुअली आस्क्ड 5 किलोवाट सोलर सिस्टम लखनऊ में कितना होगा. एक अगर रेंज अगर दे आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर ऑडियंस टुडे. So the range will vary between 65,000 to 75,000 rupees per watt, per kilowatt. यानी आप 1 किलोवाट की सिस्टम लेते हो तो आपको 75,000 रुपए प्लस माइनस उस रेंज में मिलेगा. जैसे सिस्टम साइज बढ़ती है इट विल कम डाउन, लेट्स से 70 पे आ जाएगी,
बहुत बड़ी सिस्टम साइज लेते हो तो आप 65-60 तक आ सकती है. सो दिस इज अ रेंज, डिपेंड्स ऑल्सो ऑन मेनी साइट कंडीशंस. आपको रेंज स्ट्रक्चर चाहिए या नहीं चाहिए, राइट? पैनल्स आप किसके ले रहे हो, क्या ग्रेड के ले रहे हो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है. बट अगर अच्छी सिस्टम लेनी है तो you'll have to invest so that you do not suffer. Okay, okay. Thank you so much, Nikhil. We have received a bunch of questions. Our team has already answered some questions privately, but I think for the sake of everyone's knowledge, I'll take some of the questions live so that everyone can hear the answer. Naveen ji has asked, shadow will cause any impact on the life of PV cells? Is it going to impact life of the panel after 4 to 5 years? I'm okay if it generates 1000 units kilowatt per year instead of 1400. Nikhil. So इसका आंसर अगर आसान भाषा में बताओ तो शैडो जो है वो कौन से टाइम विंडो में आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स से 12 12:30 बजे अगर आपके मॉडल के ऊपर शैडो आ रही है, दैट डेफिनेटली इज नॉट रिकमेंडेड. आपकी 4 साल 5 साल नहीं टिकेगा आपका सिस्टम. वो 2 या 1 साल भी अगर आसानी से डैमेज हो सकता है. देयर आर सम गुड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल जिसमें अगर लेट्स से 9:30 के बाद में भी प्लस माइनस थोड़ी सी शैडो है तो उसको ऑफसेट करने के लिए देयर आर एडवांस टेक्नोलॉजीज जिसे हम मॉड्यूल लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं. वो आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल, थोड़े महंगे रहते हैं ये ऑप्शन, बट आपको शैडो को काउंटर करने के लिए, बैलेंसिंग करने के लिए ये ऑप्शंस आपके पास में मिल सकते हैं इन्वर्टर्स में. राइट, थैंक यू निखिल. निखिल, सुजीत जी का क्वेश्चन है, सर मेरे सोसाइटी में 7 फ्लोर की बिल्डिंग है. आई नीड मोर देन 1 किलोवाट. आई एम स्टेइंग ऑन फर्स्ट फ्लोर. सो व्हिच टाइप ऑफ सोलर पैनल डू आई नीड? टेरेस स्पेस भी कम है इनका. ये यहाँ पे आई थिंक 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. पहले तो आपकी सिटी जाननी होगी सर, और वहाँ पे उस स्पेसिफिक स्टेट में क्या आप कॉमन एरियाज को यूज करके आपकी सोलर सिस्टम को, पर्सनल सोलर सिस्टम को यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते. टिपिकली मोस्ट ऑफ द स्टेट्स डू अलाउ. उसके लिए आपको 2-3 चीजें लगती है. एक तो आपको आपकी सोसाइटी से एनओसी लेनी चाहिए कि मैं इस स्पेसिफिक फिजिकल स्पेस में टेरेस के मेरा खुद का सिस्टम लगाना चाहता हूँ, यहाँ से मैं केबल्स नीचे लेके जाना चाहता हूँ. दिस इज फॉर योर पर्सनल सिस्टम. सो बिकॉज कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरेस्ट हो सकते हैं, आपको सबकी एनओसी लेना जरूरी है एट अ सोसाइटी लेवल. आई बिलीव दैट आंसर्स हिज क्वेश्चंस. यस, थैंक यू निखिल. निखिल, पंकज जी का सवाल है, आई हैव सोलर वाटर हीटर इंस्टॉल्ड. विल इट बी हेल्पफुल टू कीप बोथ सोलर पावर एंड सोलर वाटर हीटर टुगेदर? एज लॉन्ग एज सर आपके घर पे इनफ जगह अवेलेबल है, दोनों अगर एकोमोडेट किए जा सकते हैं तो आई थिंक इट इज गुड दैट यू कीप बोथ. अगर आपके पास में इनफ एरिया अवेलेबल नहीं है, सो यू कैन एक्चुअली रिप्लेस योर ओल्ड वाटर हीटर्स विद द electrical panels, solar panels, and that can actually give you slightly higher savings in time to come. Okay. Someone has asked a question on maintenance where he is asking, his name is Lokesh Ji. The quality of water, does that matter while cleaning the panels? Yes, quality of water does matter. एक concept होता है, एक parameter होता है TDS, total dissolved salt. So what is the TDS? The total salts in the water. What is the quality of the water is very very important. Typically 500 mg per liter, I think that should be the level. And उसमें if you are not using the right water, it can actually result to scaling on the water. So typically एक अगर आसान लेमन लैंग्वेज में बोलना है तो पानी जो आप पी सकते हो उससे आप पैनल को धो सकते हो, उसका क्लीनिंग के लिए दैट इज इनफ. बोरवेल का वाटर इज यूजुअली नॉट रिकमेंडेड क्योंकि उसमें सॉल्ट्स बहुत हाई होते हैं एंड उसका डिपोजिशन विल एक्चुअली बी अगेंस्ट द इंटेंशन की. रेडिएशन सेल्स तक पहुंच ही नहीं पाएगा अगर सॉल्ट्स का लेयर आपके मॉडल के ऊपर हो गया या फिर सॉइल का लेयर आपके मॉडल के ऊपर आ गया. सो उसको डस्ट निकालना बहुत जरूरी है. सो पानी की क्वालिटी बहुत जरूरी है. Right. Nikhil, Nitin ji has asked that MPERC or monocrystalline exactly क्या है and what is the difference between these two different technologies? Right. So जैसे मैंने पहले बताया, पॉलीक्रिस्टलाइन बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी होती थी जिसमें इम्प्यूरिटीज सिलिकॉन में ज्यादा होती थी. उसके बाद में टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई. वी टॉक अबाउट द मोनो टेक्नोलॉजी नाउ. तो मोनो में
the quality of silicon improved, the purities were lot better, impurities का level काफी नीचे चला गया. मोनो के बाद में एक और लेयर आया पर्क का. अब होता ये है, जब I'm taking the help of my mobile phone, if the solar irradiation is going to come from this side, मॉड्यूल के अंदर जाएगा, एक बार यूटिलाइज होगा, and that's it. I think this is a mono technology. But पर्क में एक पैसिवेशन लेयर दिया गया है. इस पैसिवेशन लेयर की वजह से होता यह है कि एक बार सनलाइट आई, अंदर चली गई, अंदर से रिफ्लेक्ट हो गई, एक सेकेंड चांस मिला सनलाइट को वापस से अंदर जाने का. इंस्टेड ऑफ जस्ट रिफ्लेक्टिंग बैक, it will reflect and go inside again. That will probably give slightly more chance कि आपका electric current वापस से produce हो सकता है with that additional reflection that is happening inside the module. That technology is called as PERC technology. Thank you, Nikhil. विश्वास जी का सवाल है, I am staying in a housing society with 70 flats. Do you offer, I think Solar Square offers a system which can cover common facilities as well as electricity needed for each flat? Right. So common facilities, yes. Answer is very straightforward. जैसे आपके individual homeowners के लिए अगर चाहिए, तो one NOC is very important. Second, group में there is a concept which is coming in policies very soon that is called as virtual net metering, जिसमें आप third location पे बड़ा plant लगा सकते हो and that can actually get linked to your bill. ये कॉन्सेप्ट अभी इवॉल्व हो रहा है, पॉलिसीज के ड्राफ्ट गाइडलाइंस अभी आए हैं, एंड प्रोबब्ली इन टाइम टू कम वी विल सी दिस आल्सो कम इनटू रियलिटी. आज की डेट में यूजुअली जो हम सिनेरियो देखते हैं, कॉमन एरियाज के लिए ही सोलर पावर का इस्तेमाल होता है, एंड RWS के लिए सब्सिडी का क्वांटम थोड़ा सा अलग है. रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन या CHS, हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की जो बात करते हैं, उनके लिए 18,000 रुपए की सब्सिडी अवेलेबल है पर किलोवाट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, एंड अप टू 500 किलोवाट आज की डेट में अवेलेबल. तो 90 लाख रुपए तक की सब्सिडी आपकी सोसाइटी को मिल सकती है अगर आप 500 किलोवाट की सिस्टम लगाते हैं तो. ओके. आतिश जी का सवाल है, बाइफेशियल टॉपकॉन, व्हिच वन इज बेटर? राइट. सो टॉपकॉन विल कम इन बाइफेशियल. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, टॉपकॉन इज स्टिल गेटिंग स्टेबल. आई थिंक कुछ ग्लोबल लेवल पे लैब्स ने कुछ चैलेंजेस ढूंढे हैं, और वो चैलेंजेस यूजुअली एक नई टेक्नोलॉजी को स्टेबलाइज होते होते थोड़ा समय जरूर लगता है. बाइफेशियल मोनोपर्क में भी अवेलेबल है, टॉपकॉन में भी बाइफेशियलिटी फैक्टर अवेलेबल होता है. बाइफेशियल में इंस्टेड ऑफ अ वाइट बैक शीट हम एक ट्रांसपेरेंट बैक शीट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से आई थिंक दोनों साइड से रिफ्लेक्टेड रेज को भी आप पीछे से वापस से रिकैप्चर कर सकते हो, एंड पीछे जो करंट आया है उसको हम मेन करंट से जोड़ सकते हैं. तो अल्टीमेटली आपका करंट बढ़ सकता है. हालांकि इंडियन सर्कमस्टेंसेस में हमने ये देखा है, अगर आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस अच्छा है, यानी लेट्स से आपका टेरेस का सरफेस पूरा का पूरा व्हाइट वॉश्ड है, तो आपको रिफ्लेक्शन अच्छा आएगा. जितना रिफ्लेक्शन अच्छा, आपका जनरेशन बाइफेशियल के थ्रू उतना बेटर होता जाएगा. एक क्लियरेंस जरूरी है. टिपिकली 1.5 मीटर तक का क्लियरेंस, 2 मीटर तक का क्लियरेंस विल गिव यू इनफ जनरेशन विद बाइफेशियल. 1 से 2% मिनिमम, इन गुड कंडीशन 2 to 3% इज व्हाट यू विल सी. आप लेफ्ट साइड में इस इमेज में जो पैनल देख रहे हो, दैट एग्जैक्टली इज अ बाइफेशियल पैनल. आप उसके अंदर फ्रॉम द बॉटम साइड आल्सो यू कैन सी द सेल्स वेरी क्लियरली. सो रिफ्लेक्शन में वहां पे जनरेशन हो सकता है. All right. Thank you so much, Nikhil. One last question. A lot of the question, I'll just consolidate that. कि installation में typically कितना time लगता है Solar Square team को? So installation, Solar Square has solved something like a Amazon model, जिसमें हमारी टीम हमारा पूरा का पूरा सोलर कंपोनेंट्स आपके घर पे जो लगना है, वो यहाँ पे जो वैन देख रहे हैं, ये स्पेशली डिजाइंड वैन है, जिसके अंदर मॉड्यूल्स बहुत सेफली ट्रैकिंग के थ्रू आपके घर तक पहुंचते हैं, एंड इसी में हमारी क्रू ट्रैवल करती है. सो दे विल टिपिकली टेक योर अपॉइंटमेंट, योर शेड्यूल, दे विल नॉक योर डोर एट 9-10 AM इन द मॉर्निंग. पूरे दिन वो एक दिन में पूरा का पूरा सिस्टम का काम, इंस्टॉलेशन का प्रैक्टिसेस कंप्लीट करके एट द एंड ऑफ द डे दे विल बी आउट. सो फॉर सोलर स्क्वायर इट्स अ 1 day एफर्ट टू इंस्टॉल आवर प्री फैब्रिकेटेड सिस्टम, यानी जिसमें हमारा स्टैंडर्ड एफर्ट गया हुआ है, वो एफर्ट के साथ में हम एक दिन में आपका सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं. Thank you so much, Nikhil. We are at the end of our session.
To everyone who has asked how to contact us, there's a number on your screen, 983000. Please give us a call. Our team will get back to you. और नहीं तो आप हमारे वेबसाइट में भी जा सकते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म है, वो फिल कीजिए, एंड someone from our customer support team will be in touch with you very very soon. And like I mentioned right at the start of the session, ये हम करते रहेंगे, ये हम महीने में 2 बार करेंगे, आगे जाके 4 बार भी करेंगे. These knowledge sessions will keep happening for our residential audience and to help them select the Sahi Solar. So, anytime you have any question, do reach out to us through our WhatsApp, through our social media handles are open. We are constantly monitoring. And yeah, we are here with you on your journey. So with that, I think this is the end of our webinar. Thank you, Nikhil, so much for your time. Chiranjeev ji, he has just dropped off, but thanks to him as well. The team who is answering the question in the background, Pratyush, Pranav, thank you for doing that. Thank you, audience, for taking the time out on a weekend to attend this webinar. We'll see you again on our Thank next you, webinar everybody. very very soon. And wishing a sunny day ahead to everybody. Thank you so much, Nikhil. Thank you. Bye.